गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट हमने जो देखा था ऑप्टिकल आइसोमर्स, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। वो आइसोमेरिज्म का टॉपिक पूरा खत्म करते हैं। पहले आइसोमेरिज्म में हमने लास्ट में देखा था पोलर एमिटर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है? तो कोई भी सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट करता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। Means that when plane polarized light will pass through the substance, it will rotate its plane either towards right hand side, then it is dextro. If it rotates towards left hand side, then it is Leo. Dextro small d, Leo small l. Dextro is also known as plus and Leo is minus. Now, which are basic requirement for any substance to be optically active? There are certain words that we have to remember very carefully, and this topic is very important. Basic requirement is chirality, or asymmetry. Now, what is meaning of asymmetry? Means any kind of symmetry must not be there. If it is symmetrical, then it will not rotate plane polarized light. Now, how we can find out whether any substance is symmetrical or not? For example, our right hand, this is my right hand, it is not symmetrical. Like there is a thumb, this side there is not. So it is not symmetrical. So it is called asymmetry. Asymmetry must be there. In short, any kind of symmetry must not be there. If symmetry is there, it will not rotate plane polarized light. It means it is optically inactive. Now, how we can see that whether any compound having symmetry or not, or it is chiral or not? Understand, if there is no symmetry, that is called unsymmetrical substance. It will rotate plane polarized light either towards left hand side or right hand side, and such molecule has chirality. It means chirality is what? Asymmetry. Asymmetry is, its meaning is what? Symmetry is not there. In our hand there is no symmetry. Second thing, this is main substance. If you place mirror here, then this will be its mirror image, and these two are not superimposable. इसके ऊपर एग्जैक्ट ये फिट नहीं होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का मिरर इमेज एग्जैक्टली अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, तो दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. देयर इज नो सिमेट्री, इट मीन्स देयर इज chirality. So that is important. Chirality is what? Chiral molecule is what? Then its mirror image is not superimposable on it. That is called chirality, and that substance will be optically active. क्यों? क्योंकि वहाँ सिमेट्री नहीं है. अगर ये हैंड सिमेट्रिकल होता, लाइक इस साइड जैसा थंब है ऐसा इस साइड भी होता, तो बोथ साइड स्ट्रक्चर इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल. तो उसका मिरर इमेज दोनों साइड अगर थंब होते तो वो सुपर इम्पोज हो जाता एग्जैक्टली. सो दिस कंपाउंड विल नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिमेट्री है. एनी काइंड ऑफ सिमेट्री अगर वहाँ पे है तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. सिमेट्री नहीं चाहिए हमें, एसिमेट्री चाहिए. किसी भी कंपाउंड में अगर सिमेट्री नहीं है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड chiral कंपाउंड, and it will rotate over plane polarized light. So first we'll see symmetry. Center of symmetry. Now what is the meaning of center of symmetry? Actually center of symmetry is in the center of molecule. Now from that point which is exact in the center of that molecule, if you are going towards any direction and suppose you are finding a corner, same opposite direction, same distance, you will find same corner.. For example,
suppose such compound is there, exact in the center, there is center of symmetry. How? From this center, if you are going towards this direction, and at suppose whatever distance, 5 centimeter, you are finding CH3. Exact at its opposite direction, same distance you will find CH3. इस पॉइंट से आप इस तरफ जाएंगे, जो सिचुएशन मिलेगी सेम डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे वही सिचुएशन होगी. इट मीन्स बोथ द साइड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इज देयर. अगर आप इस साइड जाते हो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेम डिस्टेंस पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा. अगर इस साइड आप जाते हो एक कॉर्नर पे CH2 मिलेगा, सेम डिस्टेंस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको कॉर्नर में CH2 मिलेगा. तो कोई भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, जितने डिस्टेंस पे आपको जो मिलता है उतने ही डिस्टेंस में ऑपोजिट डायरेक्शन में वही होगा. इट मीन्स फ्रॉम सेंटर यू कैन गो एनी साइड, बोथ द साइड अरेंजमेंट इज सेम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री. एंड सच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वहां पे सिमेट्री है. सिमेट्री होगा तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. इट विल नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स एनी साइड. सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री. Second, symmetrical axes are also there, but we will not consider that symmetrical axis. We will see only center of symmetry and plane of symmetry. Symmetrical axis हमको नहीं देखना है, तो वो हम अभी डिस्कस ही नहीं करेंगे. Plane of symmetry. Actually a triangle, that is cyclopropane, and this is 1,2-dimethyl cyclopropane. ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे दिखाते हैं, otherwise on that last carbon also there are 2 hydrogen, CH2. हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे geometrical isomers are possible, cis and trans, so we have to show this. Now ये triangle जो है वो ऐसे होगा, plane, and CH3 and H above and below, which is perpendicular to that plane of triangle. Now यहाँ पे अगर आप एक plane बीच में डालते हैं, plane, both the side arrangement is same. You can see. Both the side arrangement is same. These are identical to half portion. It means there is a plane of symmetry, and if there is a plane of symmetry, this compound is optically inactive. It will not rotate plane polarized light. This compound is not called chiral. This molecule is not called chiral molecule. Chirality is not there because symmetry is there. So that is plane of symmetry. Same in trans. You can see plane of symmetry is not there. You can cut from any direction. It is not necessary that we have to cut this way only. You can pass plane from any direction, but you will not get exact 2 half portion. Here plane of symmetry is not there, because both half portion are not identical. You can see here CH3 is upside, CH3 is downside, means both the half portion is not equally cutted by that plane. It means plane of symmetry is not there. That's why this compound is optically active. This compound is optically inactive. So this will rotate plane polarized light. Now what about this compound? You can see there is a plane of symmetry. अगर आप यहाँ से कोई plane pass करते हो, ऐसे इसको कट करते हो, तो both portion will be identical. क्रॉस में अगर आप प्लेन रखोगे तो उस साइड भी ऊपर CH3 है, इस साइड भी CH3 ऊपर है. सिस आइसोमेरिज्म में मोस्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. दिस इज सिस, बोथ द CH3 सेम साइड. ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री
होगा भी नहीं होगा, मोस्टली नहीं होता। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट किराल मॉलिक्यूल, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री है। एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब सेम कंडीशन में हम ट्रांस फॉर्म लेते हैं। ट्रांस यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि सिमेट्री नहीं थी। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब ऐसे प्लेन रखोगे तो क्या बोथ द साइड अरेंजमेंट सेम होगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले भी बोला, प्लेन आप कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी एटम को बीच में से काट सकते हो, हमें रियल में नहीं काटना है। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो ऐसे क्रॉस में आप इसको काटिए, मीन्स ऐसे यहाँ हाइड्रोजन और CH3 को बीच में से काट लो, सामने है CH3 और हाइड्रोजन को बीच में से काट लो, तो दोनों साइड का पोर्शन सेम होगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको नहीं दिखता कोई दिक्कत नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। वो यही एग्जांपल हमने देखा था, इस साइड जाओ CH3 ऑपोजिट CH3, इस साइड हाइड्रोजन ऑपोजिट हाइड्रोजन। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीन्स दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज अ सिमेट्री। So symmetrical compound are optically inactive. So what is basic necessity for any compound to be optically active? It must be asymmetrical. It must be chiral. Asymmetrical means chiral. Chirality is that is optically active. Now, what is meaning of chiral carbon? If on any carbon 1, 2, 3 and 4, all the 4 valencies are different, for example A, B, C and D. We know 4 carbon has 4 valency and all 4 valency must be different. It means nothing is similar. अगर यहाँ पर B and B होता तो certain kind of similarity will be there, so that is optically inactive. But अगर कार्बन की all 4 valencies are different, that carbon we are showing like this star, that is called chiral carbon. It means in this molecule chirality is there, and this molecule will be optically active. It will rotate plane polarized light either towards left hand side or right hand side. So this is called chiral carbon. What is its definition? All 4 valency of carbon are different. That is called chiral carbon. We'll see one example. CH3. This is called lactic acid. Lactic acid. Certain MCQ will be there that out of given 4 compound, which is optically active, then A, B, C, D 4 option will be given to you. We just have to find chiral carbon is there or not. So यहाँ पे ये कार्बन chiral होगा, क्यों? क्योंकि इस पे एक COOH है, एक OH है, एक CH3 है and एक हाइड्रोजन है. Means all 4 bonds are different. So that carbon is chiral carbon. अगर एक भी chiral carbon इस कंपाउंड में आपको मिल जाएगा, that will be optically active. So कोई भी molecular formula आपको दिया हुआ है, whether it is optically active or not, what we have to see, just we have to find chiral carbon. Chiral carbon वहाँ पे होगा तो that is optically active. अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? COOH, C, CH3, OH, H. All 4 valencies are different. This is
किराल कार्बन। नाउ व्हाट विल बी इट्स मिरर इमेज? यहाँ पे सपोज हम मिरर रखते हैं तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? OH यहाँ पे COOH and downside CH3. Now you can see these two are mirror image, exact mirror image, but they are not superimposable. इसको उठा के आप इसके ऊपर रखोगे तो exact इसके ऊपर superimpose नहीं होगा क्योंकि this OH will be on hydrogen, so they are not superimposable. If this compound will rotate plane polarized light towards right hand side, it will be dextro, or we are writing plus. Then its mirror image will rotate plane polarized light towards left hand side, means it will be Leo or minus. If any compound is optically active, then its mirror image will also be optically active, but if this is dextro, this will be Leo. If this is Leo, this will be dextro. Now whether this compound is Leo or dextro, we cannot identify from its structure. We must have to perform that polarimeter practical. We have to fill this compound in polarimeter tube, we have to pass plane polarized light, and we have to check that whether it will rotate plane polarized light towards right hand side or left hand side. In short, Leo or dextro we can decide practically only. Theoretically, yeah, by the structure we cannot identify whether it is Leo or dextro, but this is fixed that if it is optically active, if it rotates plane polarized light towards right hand side, means this is dextro, then its mirror image will be Leo. Mirror image will be Leo. And these two are not superimposable on each other. Now, these two are called enantiomers. Now, one more important definition, enantiomers. Understand carefully. The optically active stereoisomers, which are mirror image of each other but not superimposable, these two are called enantiomers of each other. For enantiomers, the substance must be optically active. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ही इसका मिरर इमेज ये दोनों एनेंशियोमर होंगे. अगर ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज एंड ये दोनों एनेंशियोमर नहीं कहलाएंगे. एंड दैट्स व्हाई इन डेफिनेशन आई मेंशन ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स. These two are stereoisomers. Molecular formula same, structural formula same. This structural formula दोनों का यही होगा, लेकिन अरेंजमेंट इज डिफरेंट. यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है. अरेंजमेंट इन स्पेस डिफरेंट. दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स. तो ये स्टीरियोआइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव है, देन इट्स मिरर इमेज विल बी एनेंशियोमर्स फॉर दिस. तो एनेंशियोमर डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. नोट डाउन इट. What is definition? Optically active stereoisomers must be there. Optically active stereoisomers, if are mirror image of each other and they are not superimposable, then these two are called enantiomers. These two are called enantiomers. Understand carefully. Now, one more important definition. Sorry. This is called racemic mixture. Now, what is racemic mixture? Equal quantity of dextro and Leo to enantiomer, 50%, 50%. 50% dextro plus 50% Leo of two enantiomers
इन शॉर्ट ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज, ये दोनों 50% अगर आप कंबाइन करोगे दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। नाउ इन दोनों का इक्वल कॉम्बिनेशन करके आप अगर पोलरिमीटर ट्यूब में फिलअप करोगे तो ये वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड मूव करेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, दोनों कंपाउंड तो एक ही है, अरेंजमेंट जस्ट डिफरेंट है। इट मीन्स इन दोनों की इंटेंसिटी सेम ही होगी, ये जितना राइट हैंड साइड खींचेगा ये उतना ही लेफ्ट हैंड साइड खींचेगा, ऑल ओवर रोटेशन विल बी जीरो, ऑल ओवर रोटेशन विल बी जीरो, एंड दैट्स व्हाई रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो, किराल कार्बन भी है इसमें, लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? DL मीन्स इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो, और प्लस माइनस, दिस इज नॉट मैथ्स, रिमेंबर मैथ्स में ऐसा लिखा होता है तो हम बोलते हैं प्लस और माइनस, यहाँ पे और नहीं है, प्लस एंड माइनस दोनों है, प्लस एंड माइनस इक्वल है इसमें, सो प्लस माइनस, प्लस और माइनस इसे नहीं हम रीड करेंगे। सो दिस इज रेसिमिक मिक्सचर DL और प्लस माइनस विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखना। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा किराल कार्बन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल now how many chiral carbons are there? Now we know what is chiral carbon. जस्ट एक कार्बन को पहले कॉन्सेंट्रेट करो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक COOH है एंड एक ये पूरा ग्रुप है। तो इस कार्बन पे जो 4 बॉन्ड है उसमें से any 2 are identical? No, all 4 are different. It means this is chiral carbon. सेम उसके बाजू वाला, यहाँ पर भी इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक OH, एक COOH एंड एक ये पूरा ग्रुप। इस कार्बन पर भी all 4 valencies are different, so this is also chiral carbon. In short, there are 2 chiral carbons. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This is called tartaric acid. Tartaric acid जो पहले हमने देखा था एक किराल कार्बन वाला, that was lactic acid. This is tartaric acid. This is one possible structure A. These two are chiral carbon. Exact इसका mirror image. This is B. Next possibility, अगर आपके पास एक किराल कार्बन है then we'll get only 2 isomers. हमने अभी लैक्टिक एसिड में देखा, एक वो खुद, एक उसका मिरर इमेज, लियो एंड डेक्स्ट्रो, 2 ही आइसोमर्स आर पॉसिबल। लेकिन अगर एक किराल कार्बन है तो यहाँ पे 2 किराल कार्बन है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे OH एंड H ऑपोजिट थे, 2 OH ऑपोजिट थे, उसका मिरर इमेज में भी ऑपोजिट ही आएंगे, लेकिन ऐसा दोनों OH सेम साइड भी हो सकते हैं। एंड इसका मिरर इमेज भी हम लेंगे।
So right now we can see there are such four structures which are possible. Such four structures are possible. Now for any compound, यहाँ पे 2 किराल कार्बन है, 3 होते तो और कई सारे स्ट्रक्चर मिलते, 4 किराल कार्बन होते तो और भी कई सारे स्ट्रक्चर मिलते. लेकिन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनेंटियोमर? For any substance like A, which should be optically active, otherwise उसका एनेंटियोमर नहीं होगा. मैंने पहले भी बोला कि एक और उसका मिरर इमेज दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, यही ओनली डेफिनेशन नहीं है. That two substance must be optically active, otherwise they are not called enantiomers. So any optically active stereoisomer and its mirror image which are not superimposable, they are called enantiomers. तो for A, अगर इसके कई सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन ए के लिए एनेंटियोमर तो एक ही होगा, क्योंकि एनेंटियोमर की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज होना चाहिए. तो ए का मिरर इमेज अगर बी है तो सी और डी उसका ए का मिरर इमेज होगा ही नहीं, क्योंकि एक कंपाउंड का मिरर इमेज तो एक ही होगा. अगर सपोज ए का मिरर इमेज बी है, ए का मिरर इमेज सी बी होता तो सी एंड बी सेम ही होंगे ना, डिफरेंट तो होंगे नहीं. तो ए के लिए एनेंटियोमर तो एक ही होगा, उसके चाहे 1000 पॉसिबिलिटीज क्यों ना हो. यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज हमने ड्रॉ की हुई है. कितनी भी पॉसिबिलिटीज हो, कितने भी स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल हो, किसी एक के लिए उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज हो ऐसा कंपाउंड तो हमें एक ही मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? ए के लिए बी एनेंटियोमर है, लेकिन ए एंड सी दे आर नॉट एनेंटियोमर, ए एंड डी दे आर नॉट एनेंटियोमर. क्योंकि ए का मिरर इमेज बी है तो ए का मिरर इमेज सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दोनों OH सेम साइड है, इसमें ऑपोजिट है, तो ये दोनों मिरर इमेज हो ही नहीं सकते. तो ए एंड बी आर एनेंटियोमर. वी कैन से ए एंड बी इज अ पेयर ऑफ एनेंटियोमर. बट व्हाट अबाउट ए एंड सी? व्हाट अबाउट ए एंड डी? A and B are enantiomer, but A and C are not mirror image. ये mirror image है ही नहीं. A and D, these two are also not mirror image. तो जो stereoisomer mirror image ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स, और फुल फॉर्म में लिखेंगे तो अगर डायस्टीरियोआइसोमर्स, दीज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स. तो अब डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन एंड एनेंटियोमर की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रख लो. एनेंटियोमर की डेफिनेशन क्या है? जो स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है और दोनों मिरर इमेज एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज नहीं होते, दीज आर एनेंटियोमर्स. मिरर इमेज होना चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, दिस टू आर एनेंटियोमर्स. बट डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन मिरर इमेज ही नहीं होंगे. द स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. डायस्टीरियोमर्स की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन क्या? स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो ए एंड सी दे आर नॉट मिरर इमेज, A and B they are not mirror image, so these are diastereomers. So diastereomers में कौन कौन आएंगे? A and C, A and D. अब B and C also not. B के लिए एनेंटियोमर कौन है? A, उसका मिरर इमेज. तो B के लिए C क्या होगा? डायस्टीरियोमर. B के लिए D क्या होगा? डायस्टीरियोमर. तो B के लिए D, C डायस्टीरियोमर्स, B के लिए D डायस्टीरियोमर्स. अब इम्पोर्टेंट, ये दोनों तो मिरर इमेज है ना, यहाँ 2 OH है, यहाँ पर भी 2 OH है, एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. तो अगर ये दोनों मिरर इमेज है और इसको उठा के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो दीज टू आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स. अब एनेंटियोमर्स के लिए जो हमने पहला वर्ड बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो. दिस ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल.
But for enantiomer, that compound must be optically active. That is very very important. अब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो अब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही, क्योंकि इसमें किराल कार्बन है, यहाँ पर भी किराल कार्बन है। मैंने पहले भी बोला था किराल कार्बन होना जरूरी है, नहीं भी है, किरालिटी होनी चाहिए। अब ये क्या नया है, अपने हैंड में किराल कार्बन थोड़ी है, सेंटर में कार्बन और 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, नहीं, किराल कार्बन नहीं है, लेकिन इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं होता। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें किरालिटी है, किराल कार्बन हो या ना हो, किरालिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। अब इसमें क्या है, सिमेट्री है, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर आप प्लेन रखो, इससे 2 पार्ट में कट करो, तो ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट आइडेंटिकल होगा। इट मीन्स देर इज किरालिटी, सॉरी देर इज सिमेट्री, एंड सिमेट्री है तो किरालिटी नहीं है। ये कंपाउंड में किराल कार्बन है, फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एंड नीचे वाला 2 पोर्शन सेम है। अगर ऊपर वाला कार्बन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो नीचे वाला उतनी ही इंटेंसिटी से राइट हैंड साइड मूव करेगा। ऑल ओवर इस कंपाउंड में से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाहर निकलेगा तो रोटेशन 0 होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंपेंसेशन। नीचे का हाफ पोर्शन ऊपर के हाफ पोर्शन को कंपेंसेट करेगा, जिसकी वजह से किराल कार्बन होते हुए भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सिमेट्री है, एंड जहां पे सिमेट्री होती है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। सो दिस इज नॉट लियो और डेक्स्ट्रो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेसो। This compound is called meso. Now understand carefully. 2 enantiomers are same compound only. We cannot simply we can say separate 2 enantiomers if they are mixed with each other and they form racemic mixture. We know what is racemic mixture, equal quantity of enantiomers, लियो एंड डेक्स्ट्रो। अगर ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे इक्वल क्वांटिटी में तो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, और उसमें से लियो एंड डेक्स्ट्रो को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। नाउ रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट? रिजोल्यूशन मीन्स टू सेपरेट लियो एंड डेक्स्ट्रो टू आइसोमर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, इनको सेपरेट करना। इसकी मेथड हमें डिस्कस नहीं करनी है, दैट इज फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड इज ऑल्सो देयर, क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो देयर, बट राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जो एनेंटियोमर है वो सेम ही है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा, इन दोनों की सॉल्युबिलिटी भी सेम ही होगी। अगर एक ज़्यादा सॉल्युबल है एक कम है तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम एक का ज़्यादा तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की मोस्टली ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, सो वी कैन नॉट सेपरेट इजीली बाय एनी फिजिकल मेथड। दैट इज एनेंटियोमर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस टू? ये दोनों डिफरेंट आइसोमर क्यों हैं? क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लियो है, यही इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ये डिफरेंस की वजह से ही हम इसको 2 डिफरेंट कंपाउंड कंसिडर करते हैं, otherwise they are same, otherwise they are same. अब because this is meso, there is a plane of symmetry, this compound is optically inactive. ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, तो ये डेक्स्ट्रो या लियो तो है ही नहीं, तो उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, तो ये भी लियो और डेक्स्ट्रो नहीं है, तो ये दोनों एनेंटियोमर ही नहीं है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है ही नहीं, ये दोनों एक ही है। हमें ये 2 कंसिडर नहीं करने हैं। हमने अभी बोला ये दोनों मिरर इमेज है, इन दोनों का ऑल प्रॉपर्टी सेम होगा, ऑल प्रॉपर्टी सेम होगा, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक डेक्स्ट्रो है तो लियो, इसी वजह से हम इन दोनों को डिफरेंट कंपाउंड कंसिडर करते हैं। लेकिन ये तो लियो और डेक्स्ट्रो है ही नहीं, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए वो तो है ही नहीं इसमें, बाकी तो सब सेम ही है।
तो मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने मिलेंगे? 1 2 3 4। नो, दिस इज नॉट 1 2 3। मेसो जो होगा उसका मिरर इमेज हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों सेम कंपाउंड ही होंगे। तो अब यहाँ पे टोटल 3 ही आइसोमर मिलेंगे। तो ये जो हमने डी लिखा ना, उसको हम अभी मिटा देंगे। अब ए एंड बी आर एनेंटियोमर, ए एंड सी डायस्टीरियोमर, बी एंड डी डायस्टीरियोमर्स, दैट्स इट। डायस्टीरियोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। डायस्टीरियोमर्स होने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है, याद रखना। हम एनेंटियोमर की डेफिनेशन में बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। लाइक ए एंड सी आर डायस्टीरियोमर्स, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये नहीं है। लेकिन डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? जो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों आइसोमर तो हैं ही, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन अरेंजमेंट इन स्पेस आर डिफरेंट। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर तो है ही। अब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो दिस टू आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। उसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। तो ये अच्छी तरह से याद रखो। वन मोर इम्पोर्टेंट, ये कहीं पर पूछे अगर तो याद रखना, CH3 are opposite. This is trans and 2CH3 on same side. This is cis. क्या cis and trans आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि cis में दोनों CH3 सेम साइड होंगे, ट्रांस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों किसी भी एंगल से मिरर इमेज नहीं होंगे। अब cis एंड ट्रांस क्या स्टीरियो आइसोमर्स हैं? ऑब्वियसली है। स्टीरियो आइसोमर में तो ये सब आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, उसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमर है ना, सिस एंड ट्रांस, तो स्टीरियो आइसोमर्स तो हुए ही। दिस टू आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज। इट मीन्स दिस टू आर ऑल्सो डायस्टीरियोमर्स। ये अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स के लिए एनी भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये नोट डाउन कर लेना, सभी मैटर इंपॉर्टेंट है, नोट्स में रखना इसको। नाउ हम इसमें छोटा सा चेंज करेंगे। CH3 Now we can see A and B are exact mirror image of each other and they are not superimposable. So we can say A and B
is a pair of enantiomer, and equal quantity of mixture of A and B will be racemic mixture. Now C and D also mirror image of each other. They are not superimposable. So can we say that C and D is a pair of enantiomer? Enantiomer का definition again क्या है? Stereoisomers which are mirror image. Optical active stereoisomers which are mirror image and not superimposable. So is it optically active? Yes. There is no plane of symmetry. यहाँ पर plane of symmetry नहीं है क्योंकि ऊपर COOH है, नीचे CH3 है. So these two half portion are now not exactly same. So there is no plane of symmetry. इसको दो पार्ट में कट करो, ऊपर और नीचे का पार्ट सेम नहीं है. तो नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मीन्स दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लियो होगा. तो इन दोनों में यही तो डिफरेंस होना चाहिए, डेक्स्ट्रो एंड लियो. दैट्स व्हाई दिस टू आर डिफरेंट कंपाउंड. सो नाउ दे आर नॉट वन ओनली. मेसो जब होता है तब उसका मिरर इमेज हमें काउंट करना नहीं है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कभी भी आपको मिले तो उसका एक मिरर इमेज एक्स्ट्रा आपको स्टीरियो आइसोमर में काउंट कर देना है. एक किराल कार्बन होगा तो दो ही आइसोमर मिलेगा. कौन? एक वो खुद और वो उसका मिरर इमेज, दोनों हो गए ना. तो नाउ दिस टू आर ऑल्सो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स. ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करोगे तो भी ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, Dl और प्लस माइनस. नाउ विच आर डायस्टीरियोमर्स? हमने पहले भी बोला था A का मिरर इमेज B है, ये दोनों एनेंटियोमर होंगे तो A के लिए C डायस्टीरियोमर ही होगा, A के लिए D डायस्टीरियोमर ही होगा, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज नहीं होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे. तो A and C डायस्टीरियोमर्स, A and D डायस्टीरियोमर्स. सेम फॉर B. B के लिए अगर A एनेंटियोमर है, ये दोनों मिरर इमेज है, तो B के लिए C डायस्टीरियोमर्स, B के लिए D B डायस्टीरियोमर्स. एंड यहाँ पे मेसो नहीं है, यहाँ पे मेसो कंपाउंड नहीं है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच आर डायस्टीरियोमर्स, विच आर एनेंटियोमर्स, which will form racemic mixture, which is optically active, which is optically inactive. कभी कार्बन किराल होते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. मेसो में हमने देखा ना, किराल कार्बन है फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. कभी कभी किराल कार्बन नहीं होता फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. इन शॉर्ट, किराल कार्बन इज नॉट इम्पोर्टेंट, किरालिटी इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज किरालिटी? तो उसमें सिमेट्री नहीं है तो किरालिटी है. अब किराल कार्बन हो या ना हो, उसमें सिमेट्री नहीं है तो किरालिटी है, एंड दैट कंपाउंड विल रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सो दैट इज कॉल्ड किराल मॉलिक्यूल, किराल कंपाउंड. वहाँ पे किराल कार्बन होना जरूरी नहीं है. किराल कंपाउंड इज व्हाट? द कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल. इट मीन्स देयर इज नो एनी सिमेट्री. सिमेट्री होगी तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगा. तो सिमेट्री नहीं है मीन्स किरालिटी है. तो किराल मॉलिक्यूल इज डिफरेंट थिंग, किराल कार्बन इज डिफरेंट थिंग. किराल कार्बन होते हुए भी कई सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन किरालिटी जिस मॉलिक्यूल में है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंड केयरफुली. अब यहाँ पे जो मेसो था उसमें किराल कार्बन होते हुए भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि किराल कार्बन है फिर भी ये इनएक्टिव है? तो ये पोर्शन जो हुआ, हाफ पोर्शन नीचे वाला, वो ऊपर वाले हाफ पोर्शन को बैलेंस करता है, कंपेंसेट करता है. मैंने अभी वर्ड बोला ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंपेंसेशन. इस मॉलिक्यूल की इंटरनल अरेंजमेंट ही ऐसी है कि एक हाफ पोर्शन दूसरे हाफ पोर्शन को कंपेंसेट कर देगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर रोटेशन जीरो होता है. तो इन मेसो देयर इज इंटरनल कंपेंसेशन, बट इन रेसेमिक मिक्सचर Dl या प्लस माइनस ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, लेकिन इसमें इंटरनल कंपेंसेशन नहीं है. लाइक दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही है, लेकिन इसमें अगर आप इसका 50% ऐड करोगे, बाहर से आप इसमें ऐड करते हो, ये मॉलिक्यूल के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, इस B को आप A में ऐड करोगे इक्वल क्वांटिटी में, तो ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा एंड दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव.
तो अब इसका इनएक्टिव होने का जो रीज़न है वो क्या है, इसमें आप बाहर से कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस ऐड करते हो जिसका रोटेशन एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है और सेम क्वांटिटी में है, इंटेंसिटी में है, तो ये कंपेंसेट हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड खींचेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड खींचेगा, ये कंपेंसेट हो गया, ऑल ओवर रोटेशन जीरो होगा। लेकिन ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन हुआ, बाहर से आपने मिक्स किया। इसमें हम कोई मिक्स नहीं करते बाहर से। ये मॉलिक्यूल की इंटरनल अरेंजमेंट ही ऐसी है कि नीचे का हाफ पोर्शन ऊपर के हाफ पोर्शन को कंपेंसेट करता है। तो ऐसा भी कई डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मेसो में क्या होगा, इंटरनल कंपेंसेशन, लेकिन रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। उसकी वजह से रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। किराल कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेम हियर, किराल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बेटा, बाय।